सो हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया। तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को एंटरटेन करना तो रेडियो स्टेशन का काम होता ही है, गाने आप लोग सुनते हैं वहाँ पर, आपके फेवरेट सॉन्ग्स वहाँ पे सुनते हैं आप लोग, डांस उस पर करते हैं। बट क्या है कि वहाँ पर हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी चीज़ें आपको सिखाते हैं जो यूजुअली सुनने में नहीं मिलती हैं या सीखने को आपको नहीं मिलती हैं। तो आज की कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पेरेंट्स भी रहेंगे और आपके टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, प्लस आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी आज के दिन। सो व्हाट इज़ योर नेम? अक्षत। विच क्लास आर यू इन? 6th। मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको जल्दी जल्दी उसे रिपीट करना है, ठीक है? पकौड़ी की कचौरी, कचौरी की पकौड़ी। पकौड़ी की कचौरी, कचौरी की पकौड़ी, पकौड़ी की कचौरी, कचौरी की पकौड़ी, पकौड़ी की कचौरी, कचौरी की पकौड़ी। हाँ, तो वर्ड है, आपको रिपीट करना है जैसे हमने बच्चों से खिलवाया। लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक वे तो लपक वे कब? लपक बबूलिया लब, अब नहीं लपक तो कब लपक, पता नहीं। लपक बबूलिया लपक, अब ना लपक वे तो कब लपक। She shell on the shore. She shells on the shore. I don't know what I was Claps for ma'am, please. Claps, claps, claps. Right. She sells seashells on the seashore. She sells seashell on the seashore. Alright guys, so अब हम लोग डिबेट करना चाहेंगे। डिबेट कौन कौन जानता है क्या होता है डिबेट? So the topic is, should students be given mobile phones or not? हिंदी में एक कहावत है, हर चीज़ की अति क्षति होती है। सो वी शुड नो वेयर शुड वी स्टॉप, दैट्स इट। इफ अगर नमक खाने के लिए ज़रूरी है तो हम पूरा पैकेट नमक का नहीं डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक ज़रूरी होता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए और पीएच को बैलेंस करने के लिए और खाने में स्वाद लाने के लिए। तो एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड बी, इफ़ यू आर यंग अंडर 18, you should be on the vigilant of any adult, then only. Why? Because you don't know the editing part, where to stop. Somewhere I'm agree with my colleague, but somewhere I'm not, because you know that as my colleague is saying that every student should be given to mobile phone, so that is not proper to give each standard student mobile, because sometimes in your primary section and after that primary section, secondary section, that students, they don't have any exactly idea that how to use phone properly. So that's why every student should not be given as per ma'am suggested. Yes, they should know restriction that when they are to use mobile, or then where they should avoid this term. Okay, so it is very important to know that for which age student it should be allowed. Hello. According to me, if we are giving mobile, so because of the mobile we have the project work, this, that, they are so much busy in that. And whenever they are feel free, they are busy with that. So because of this social life is hampered. According to give the time to their parents, to their friends, they are busy in the indoor activities, most of the, and mobile is the best source for this the school assessment and all. Because of this, they are always busy in that. So I'm thinking the social life is hampered. Not every time there should not be a limited time for distraction, and I want to say that there not every person is taking the disadvantage. There are so many people which are taking the advantage of the phone. Like there is an IPS from Haryana. She can't afford the coaching, but she has the phone, and now she is the IPS. Divya Tawar. She is from Mahendragarh, and she is really an inspiring lady, and she is so good. She was living in such a small house that her mother didn't also have any job, but now she is the IPS and she is so proud of her. Children are using the phone, then they cannot attract with the teachers, and their eyes also damage, and they're not attract with the sports activities. Good morning everyone, my name is Akshit. So I am against the online. I am from class 9 Thinkers.
तो मेरा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन, जैसे हमारा पिछला टॉपिक था कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि बच्चे, जैसे एग्जांपल दिया है कि गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों का मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्शन पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और वो अपनी स्कूल लाइफ पूरी तरीके से जी नहीं पाते। तो आप लोग कह रहे हो बच्चों को मार पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, आप कह रहे हो पढ़नी चाहिए। आइए ऐसे खड़ी हुई है ऐसे लाइन में कि जब अगर हम स्टूडेंट्स को मारेंगे नहीं ना, जब तक वो, जैसे उन्होंने फ़ोन ले रखा है 1-2 घंटे तक, जब वो खेलते रहेंगे उन्हें कोई समझा दो वो कुछ नहीं करेंगे। पर हम जब उन्हें मारेंगे ना, जब उन्हें समझ आएगा कि हमें क्यों, हम ऐसे रोते हैं पर अपने भलाई के लिए मारते हैं अपने पेरेंट्स। I am from class 8 creators, so from teachers, please don't beat students because they also have feelings and from और दूसरे बच्चों के सामने उनकी भी बेइज्जती होती है, so please don't beat them। मतलब बेसिकली प्रेस के सामने भी है। तो माय फेवरेट डे ऑफ द वीक, हफ्ते में आपका सबसे फेवरेट दिन कौन सा है, उस पर आपको बोलना है। संडे है, क्योंकि संडे को ये कि सुबह लेट तक उठते हैं, आराम से रिलैक्स, पूरे दिन काम कुछ एक्स्ट्रा होता है लेकिन ये कि उसमें पूरे दिन आराम मिलता है कि ये है कि हाँ भी आज छुट्टी है दिमाग में, इसलिए सर संडे सबसे बेस्ट। वाला है पत्नी वाला। पत्नी एक ऐसी चीज होती है जिसको ब्याह के लाने पर रोने लग जाती है, ऐसी किसकी पत्नी है जो रोती नहीं है। और एक ऐसी पत्नी चाहिए जो लुगाइयों से बिल्कुल भी बात नहीं करती हो, नहीं तो ऐसे करते रहती है दूसरी तो तन मेरा रमा की भू बाज गई। और ये चुगलियां तो किसी को भी पसंद नहीं है, पसंद है तो किसी को बता दो। योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन? MS धोनी। 1.5 मिनट है आपके पास। गुड जेंटलमैन, अच्छा मतलब कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है, और पैसा हो या कुछ भी हो मतलब उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। सर आपका टॉपिक है लॉकडाउन, लॉकडाउन का आपको 1 मिनट बोलना है बस। सबसे पहले तो लॉकडाउन बहुत बुरा गया, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसी चीज़ थी कि लाइफ में पता चला कि पेरेंट्स क्या है। मुझे 10 ईयर्स हुए मैं मेरे फैमिली से दूर था, मीन्स 10 ईयर्स से मैं राजस्थान में भी जॉब कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके, सो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर आई एम वर्किंग इन राजस्थान। तो लॉकडाउन में ऐसी चीज़ हुई कि पेरेंट्स, मम्मी पापा क्या है, अच्छा मॉम डैड क्या है, ये सबसे मेन चीज़ पता चली, क्योंकि तब के टाइम पे हम लोग बोलते थे कि पेरेंट्स हमें मारते थे, पीटते थे, ये जो टॉपिक चल रहे थे कि पेरेंट्स के ऊपर, तो उस टाइम पे पता चली कि यस मेरे डैड सही थे, मेरी मॉम सही थी। क्या सुना आपने? सोनू के पापा ने सोनू की मम्मी को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये बोला था क्या ग्रेसी? ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक जो पहुंचा मैसेज, जो मैसेज यहाँ पे पहुंचा वो आपने सुन लिया। सोनू के पापा ने सोनू की मम्मी को चांदी की चमचे से चटनी चटाई क्या? ओके, लेट्स सी मैम को क्या बताया था मैम ने, आपने क्या सुना मैम? सोनू के ससुरे ने सोनू की सास को सोनभद्र के किले पे सोने की थाली में सोन पकड़ी खिलाई। बट आपको भी हम एक टॉपिक देंगे जिसपे आपको 1.5 से 2 मिनट बोलना है। आपके लिए टॉपिक सिंपल है, आपके लिए है नवजीवन। नवजीवन मीन्स न्यू बर्थ, नया जीवन मीन्स जहाँ पे भी हम लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल, जहाँ पे भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कहीं पे भी कुछ भी अपन को अचीव करना है तो वो अपने लिए एक नया होता है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे जगह होती है, बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने अभी यहाँ पे न्यू ज्वाइन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एडमिशन्स लिया है। सो दैट इज़ योर न्यू बर्थ। और उसी के अकॉर्डिंगली न्यू बर्थ का मतलब है कि हमें जो पुराने बर्थ से जो भी हमारी लाइफ की जो कमियां रही हुई है, जो भी हम पुरानी लाइफ के अंदर जो भी हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, प्रॉन्स रहे हैं, उनको हमें रिपीट नहीं करना होता है। आपने देखा होगा कि हमें किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनने के लिए हमें वी नीड टू सम एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस मीन्स अगर आप कोई टीचर है, लेट्स सपोज वो 6 क्लास में पढ़ा रहा है,
फर्स्ट टाइम उन्होंने टीचिंग करवाना स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूवमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूवमेंट होगा। मीन्स ईच एंड एवरी डे वी विल लर्न द न्यू कंसेप्ट। और जिस इंसान ने अगर ये सोच लिया आई एम द परफेक्ट पर्सन, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, उसकी प्रोग्रेस है वो भी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। तो एटलीस्ट हमें ऑलवेज, आपने सुना होगा कि हमें ऑलवेज एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। मीन्स नया सीखने की डेडिकेशन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके को रिलेट करना चाहूँगा। मेरे एक कलीग थी जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनके पापा रिटायर हुए थे। तो वो नॉर्मल एक क्लरिकल पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। तो उनको इंटरनेट का कुछ भी नहीं आता था। तो हमारे साथ बीटेक किए हुए जो कैंडिडेट है, उनके फादर जब रिटायर हुए तो उन्होंने एक ही चीज़ डिसाइड की कि मुझे एनी हाउ मेरी बेटी से, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से थी, मुझे मेरी बेटी से इंटरनेट सीखना है या कंप्यूटर के बारे में मेरे को कुछ सीखना है। अब आप सोचते होंगे कि क्या एज होती है लर्निंग की, क्योंकि आपने देखा होगा रिटायरमेंट की एज है वो 62-65 ईयर्स ओल्ड होती है। तो 62-65 ईयर ओल्ड होने के बाद में उन्होंने अपना सब कुछ विद इन 1 ईयर में उन्होंने जो भी अपना काम करते थे वो मेल के थ्रू, वो आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या आपके व्हाट्सएप के थ्रू, पहले वीचैट चलता था और कुछ चलता था उस टाइम में, आजकल तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत सारी, तो उन्होंने पूरा कंप्लीटली अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बना लिया। जब मैं उनसे फिर लगभग 1 साल का टाइम निकल गया था, उनसे मैं मिला तो आई एम सो सरप्राइज्ड। उनको आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लासेस, in computer science total we have the 3 department. First one is a programming, second one is a database management system and third one is a networking. तो जब मैं नॉर्मली उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, नॉर्मली मैं उनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा था, तो उनके पास सब कुछ मीन्स ही नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो उन्होंने मैंने पूछा अंकल ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंजेस आया? बोला बेटा बेटी की बुक्स है वो रखी हुई थी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और उससे मैंने पूछ लिया कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी की सारी मैंने स्टडी की। मेरे को जहाँ समझ में नहीं आया, बेटी नहीं थी मेरे पास लेकिन समझ में नहीं आया, मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। अभी थोड़ी देर पहले श्रेया मैम और पिंकी मैम इस पे डिस्कशन भी कर रहे थे, डिबेट भी था। तो बोला मैंने इंटरनेट की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से मैंने वो सारी चीज़ें जो जो हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल्स है वो सारे क्लियर किए विद इन 1 ईयर में। जो 4 ईयर की बीटेक के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनका बेसिक सिनेरियो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि नव जीवन मीन्स नया जीवन अगर आपको मिला है, नई क्लासेस में आप लोग गए हैं, नए स्कूल में आप आए हैं, मैं ये टीचर्स को भी बोलना चाहूँगा, तो आप यहाँ पे जो अपनी पुरानी स्कूल्स में पुराने जहाँ पे हुआ था उसको आप रिपीट नहीं करें, आप यहाँ पे कुछ नया करें। जैसे अपना स्कूल है वो पूरे राजस्थान का फर्स्ट स्कूल है जो पूरे राजस्थान में फर्स्ट फिक्स बेस्ट सीट मैट्रिक्स स्कूल है। मीन्स हमारे पास सीटें लिमिटेड है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान आउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस होती है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि नया मेंटल एबिलिटी कंसेप्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 97-95% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नवजीवन के अंदर आने के बाद में मेंटल एबिलिटी की कंसेप्ट है वो पढ़े, उनको एग्जीक्यूट किया, उनसे उन स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उनमें भी उनको इम्प्रूवमेंट मिला। तो नया सीखते रहना चाहिए। अभी क्लासेस में आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी, अपने अभी हायर्ड 3 कंप्यूटर टीचर ऑल्सो। तो मैं क्लासेस में जब मैं पूछता हूँ तो सर बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो वाई यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर रेस्पॉन्स? बिकॉज आप लोग कुछ नया सीखने की आप में दिमाग में नहीं है। अगर आपने नया सीखने का कुछ किया, नया कुछ करने का किया, डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। और मेरा ये मानता है चरे वेती, एक संस्कृत में बहुत सुंदर 2 वर्ड है, चलते रहो। तो नव जीवन का मतलब है कि आप जहां से भी सीख पाए, क्योंकि एक इंसान है जब तक वो मरेगा, जब तक उसकी डेथ होगी तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो आपको ये नहीं सोचना यार मेरी इतनी उम्र होगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने जूनियर से भी पूछ लेता हूँ, अगर नहीं आ रहा इट्स ओके, क्या हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बट अगर आप कोई गलत डिलीवरी दे रहे हो, आपने कई टीचर्स के साथ भी होता है, कई बच्चों के साथ में भी होता है, उनसे अगर कोई क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट पुटअप किया,
वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज द रॉन्ग वे. इफ यू आर नॉट आंसर दैट थिंग तो डिनाई इट. यस टुमारो आई विल टेल यू. ऐसा होता है, ऐसा हर एक सब्जेक्ट में होता है कि वी आर नॉट ए परफेक्ट पर्सन. कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई टीचर है, कोई बच्चा है, वो गलत आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो गलत आंसर नहीं देना चाहिए, हमें नया सीखना चाहिए. और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द नवजीवन. थैंक यू सर. आप लोग ने भी एक्टिविटी करी थी, एक आपको टॉपिक दिया था, 1 मिनट तक बोला था. सर स्पोक अबाउट मोर देन 5 minutes. तो नो यू डोंट हैव टू बी सर. सो या दिस इज व्हाट द आइडिया वाज. हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और बता सकें. कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा और आपको डेवलप कर सकें आपकी. तो ऐसी थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी जो हम लोग करते रहेंगे. वी हैड प्लान्ड फ्यू थिंग्स विद योर पेरेंट्स आल्सो. 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन.